So should I speak in English or Hindi? Which is more comfortable? Or both is between? Mix. You take what? इंग्लिश दोनों मिक्स करेंगे, बीच बीच में हिंदी और बीच बीच में इंग्लिश। ये तो बोर हो जाएंगे ना, तो मसाला होना चाहिए। There should be some spice in life. One small request. Yes. At the end of the class, just read the names. You can gather some notes. Yeah. I can immediately change my language. That is why one of my Krishna's blessed me with that. My transit phase is very less fast, immediately. So basically, when I came to the darshan of the Lord, because from there on the details will be so attractive. And one of the reasons for me joining Brahmacharya Ashram was deities. I never joined Brahmacharya Ashram to become a preacher. Never. That was never in my list. Never even a thought also to become a preacher. Because by nature I used to be reserved. I am still reserved. If you lock me in this room for 1 year, I will be the most happiest person. Without meeting anyone. Because in my life, till the time I entered into Krishna consciousness, till now also, I really don't have any friends. Like normally in school or college you have friends, no? With whom you freak around and you go around. ऐसे कोई दोस्त तो जिंदगी बने नहीं और कभी जरूरत ही नहीं पड़ी. I never felt that I need a friend. So because of that reserved nature, I was always happy. My whole problem comes when you enter into relationships. But then, in 2000, we were in Jagannath Puri Yatra near Gundicha temple. The Rath had already reached Gundicha temple. And as per my nature, I was sitting in one corner. All the devotees were sitting in one corner, and I was sitting in one corner. So immediately Gaurang said, क्या कर रहा है यहाँ पर? तो मैं बैठा हूँ यहाँ से दर्शन ले रहा हूँ. बोले वो सब लोग क्या कर रहे हैं? वो भी बैठे. बोले उनके साथ में बैठो. बोला मुझे जमता नहीं, I feel inconvenient. Then he punched me. दिया उन्हें एक ऐसे नहीं शब्दों के बाद से. He said, Prabhupada says, if you think that you can progress in spiritual life on your own without the association of devotees, then you are insane. आप पागल हो. यदि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं बिना भक्तों के संग के अकेला ही आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकता हूँ, तो मैं कौन हूँ? तो इसीलिए मुझे स्विच ऑफ करना पड़ा. पर बहुत कठिन है मेरे लिए स्विच ऑफ करना. पर भक्ति का सार यही है, स्विचिंग ऑफ. हम कौन हैं, कैसे हैं, क्या है, इन सबको हमें साइड में रखना है और डूइंग द नीडफुल. जो करना है वो करना है. आप कौन हो, कैसे हो, इसे कोई मानी मतलब नहीं. डूइंग द नीडफुल. तो इसीलिए एक्चुअली आई जॉइंड फॉर डीटी वर्शिप. आई वाज वेरी अट्रैक्टेड, very much attracted by deities, especially Gopinath. So then when I came here, I saw such nicely dressed. They look very neat from there actually. When I was sitting there, it looked so neat. It don't look too shabby. And then I saw a small photo of Gopalji in one corner. So then I was thinking, yes, whatever Anant Raghu was speaking is quite befitting. Because this is Chandan Yatra time, right? So everywhere the Lord is being applied Chandan for 21 days. So here the origin of Chandan Yatra festival, Gopalji, for whom this festival was actually initiated. ग्रामे रही ईश्वर तुम्हार गोवर्धन धारी, कुंजे आचे चलो तेनो बाहरी कोई. This is Madhvendra Puri telling all the Brajavasis. What is saying? ग्रामे रही ईश्वर तुम्हार गोवर्धन धारी. जैसे ही माधवेंद्रपुर के स्वप्न में भगवान आए और स्वप्न में उन्होंने क्या किया?
पहले तो दूध पिलाएगा। जब किसी को काम पे लगाना हो तो पहले क्या करना चाहिए? चाचा खिलाओ पिलाओ, या तो खिलाओ पिलाओ या तो फिर हम खिलाएंगे करके आश्वासन दे दो। स्पेशली हम इस्कॉन में देखते हैं जो प्रसाद सर्विंग का सेवा करते हैं ना, अगर आप चाहते हो कि जो लोग प्रसाद सर्विंग करते हो बड़े प्रेम से सर्विंग करें तो उसका दो ही रास्ता है। क्या है? सारे भक्तों को खिलाने से पहले उनको खिला पिलाकर फुल टाइट कर दो, फिर बड़े प्रेम से सर्विंग करेंगे। ये तो आधा ध्यान गिरता है, अरे ये खत्म हो गया तो, अरे आइटम नहीं मिला तो, अरे हमारा क्या होगा। तो इसके चलते पूरे हृदय के साथ सर्विंग नहीं कर पाते। एक पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है, एक रूम में उनके लिए लाइन से बकेट भर दो सभी आइटमों का और फिर सभी को दिखा दो ये आप ही लोगों का है, इस पर और किसी का अधिकार नहीं है। दर्शन करा देंगे फिर वो बड़े दिल से सर्विंग करेंगे, क्योंकि पता है भले काउंटर पे खत्म हो गया हो, हमारा काउंटर तो है, अपना कोटा पूरा हो जाता है, तो बड़े प्रेम से सर्विंग करेंगे। तो गोपाल जी ने पहले माधवेंद्रपुरी को क्या किया? एक मटका भर दूध पिला दिया, बोले बेटा दूध पिलाओ। और जैसे ही दूध पीकर हो गया फिर भगवान स्वप्न में आते हैं और क्या कहते हैं? मैं वहां पर उस कुंज में हूं, बहुत वर्षों से उस कुंज में मुझे छुपाया गया है, आप मुझे बाहर निकालिए। और फिर भगवान के इस आदेश को सुनकर और भगवान का दर्शन करके वो बड़े पश्चाताप करने लगे, रोने लगे। क्षमा करिएगा मैं थोड़ा कुछ इसके बारे में बोल रहा हूँ, प्रभु जी ने मुझे दूसरा ही कुछ टॉपिक दिया था, मैं बीच में टॉपिक में टच करूँगा, घबराई नहीं, आई टच द टॉपिक आल्सो, बट समहाउ आई कैन नॉट रेजिस्ट, आई डोंट नो व्हाट ही स्पोक, बट देन स्टिल इफ आई रिपीट प्लीज बेयर विथ मी, इफ आई डोंट रिपीट एंजॉय इट, रिलीज इट। तो भगवान ने उनको दूध तो पिलाया मटका भर, और फिर स्वप्न में आकर दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर छुपा हूँ, कृपा करके मुझे बाहर निकालिए। पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या कहा उन्होंने? मैं बहुत वर्षों से आपका इंतजार कर, आई एम वेटिंग फॉर यू। तो इसलिए भगवान को जिनसे सेवा लेनी है उनके लिए भगवान भी इंतजार करते हैं, और भगवान अपनी सेवा सभी से नहीं कराते। यू हैव टू बी दैट सिलेक्टेड वन, ये जान लीजिए। या तो से दूसरे तरीके से हम समझे, यदि कोई सेवा कर रहा है और हम वो सेवा नहीं कर पा रहे, भगवान ने किसी को यदि कोई पोजीशन दी हो, कोई सेवा सौंपी हो, नॉर्मली हमें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। इट्स नेचुरल, हम बद्धजीव है ना, हम कोई प्योर ड्यूटी नहीं है, ऊपर से टपके नहीं हम नहीं। हमारे माता पिता ने 64 माला जप कर हमें जन्म दिया है, वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट। तो कुछ होता है, और क्या होता है? कुछ कॉम्प्लेक्स फील होता है, मुझे वो सेवा नहीं है, मैं तो कर पाता ये वो। बट इन सबको यदि आपको बगल में रखना है तो ये सोच ले कि he has been selected by Krishna, he has been selected by गुरु और भगवान ने उनको चुना है। So rather than envying that person, what you should do? You should try to assist that person. हम क्या करते हैं? ईर्ष्या करते हैं। तो ईर्ष्या करने के बजाय, ईर्ष्या करने से हम भगवान की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि भगवान को कृपा को प्राप्त करना है तो दो चीज करना होगा। क्या है वो दो चीज? वी हैव टू असिस्ट दैट पर्सन, और हमारा परंपरा ही वो है, गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दास अनुदास। सो दैट इज द सेफेस्ट पोजीशन। असिस्ट करो या ट्राई टू गेट क्वालिफाइड। उनमें जो गुण है, सेवा के माध्यम से उनकी सेवा कर उनमें जो गुण है
उस गुण को अपने आप में उतारने का प्रयास करो या उस सेवा के लायक बन जाओ। बट प्लीज डोंट एनवी, बिकॉज एनवी यू आर सिंपली डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ। सो क्वालिफाई योर सेल्फ। If you can't qualify, be happy in assisting. So that is the safest position. So therefore, माधवेंद्र पुरी जब उनको भगवान स्वप्न में आए और जब वो स्वप्न से बाहर फिर अपने होश में आ गए तो बहुत रोने लगे, वो क्रंदन करने लगे। क्यों? कि भगवान मेरे समक्ष आए और मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। भगवान मेरे समक्ष आए और मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। जैसे हनुमान जी ने भी पहली बार जब रामचंद्र से मिले तो रामचंद्र को पहचान नहीं पाए। किष्किंधा कांड की शुरुआत ही होती है राम, लक्ष्मण और हनुमान के मिलन से। जब सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा कि जाकर पता करो ये कौन है। शरीर से तो क्षत्रिय लग रहे हैं, भारी भरकम शरीर है, वेल कट, वेल फिजिक है, नहीं वी शेप बॉडी है, कट से अच्छे, पर वेश धारण तो साधुओं का है। ये कुछ मैच नहीं हो रहा है। When things don't match, there is always confusion. तो सुग्रीव बड़े कंफ्यूज हुए और उन्होंने क्या किया, हनुमान जी को भेज दिया, जाओ पता करो कौन है। क्योंकि सुग्रीव के मन में हमेशा एक ही भय पनप रहा था। He was always fearful of only one thing. And what was that? Fear of वाली। ये भी बहुत सुंदर विषय है। हनुमान जी की एंट्री जो है रामायण में कैसी होती है, द पंचिंग स्टेटमेंट। जैसे हम देखते हैं कोई मूवी में हीरो की जो एंट्री होती है या हीरोइन का जो एंट्री होता है वो सिंपल ऐसे नहीं होता। हीरो कुछ स्टंट मार करी है ना, स्टंट मारते हीरो, पता अरे ये हीरो है। जब हीरो भी दिखा दिए फिल्मों में, अभी नहीं, मैं अभी 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अभी मुझे पता नहीं अभी मूवी का स्टैंडर्ड क्या है। उस प्रकार से हनुमान जी को भी बड़े स्टंट में, बड़े डायनामिकली वाल्मीकि जी ने रामायण में प्रस्तुत किया है। तो सीन ऐसा है कि वाली विचलित होकर इज वेरी डिस्टर्ब और इज रनिंग हियर एंड देयर, फ्रॉम दिस माउंटेन दैट माउंटेन, फ्रॉम दिस ट्री टू दैट ट्री, इज जस्ट जंपिंग अराउंड। बड़े भयभीत रूप में सुग्रीव जो है इस शिखर से उस शिखर पर छलांग लगा रहे। और फिर हनुमान जी देख रहे, अरे अब तक तो ठीक था, कुछ समय पहले तक ठीक था, अब अचानक इसे क्या हो गया, व्हाट हैपेंड सडनली, व्हाई जंपिंग हियर एंड देयर, और फिर भी भय में होगी। तब हनुमान जी समझ गए, साथ में रहते हैं ना, there are so many lessons to be learned from each and every word, so many lessons are there। क्योंकि सुग्रीव के साथ हनुमान जी उनके संग में है, तब क्या हुआ, हमें केवल भक्तों के संग में नहीं रहना या फैमिली में भी केवल संग में रहना नहीं है। वी डोंट जस्ट लिव विद देम, along with living we should also try to understand, समझने का प्रयास करना चाहिए। तब जब आपस में ये समझदारी होगी ना, तब बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। You don't have to speak. That is the beauty of a relationship, जहां पर बोलने की जरूरत ना पड़े। That is the height of relationship। संबंध इतना गहरा हो, इतना मिठास हो कि हमने कुछ कहा ही नहीं और सब कुछ कह दिया, बिना कुछ कहे सब कुछ। ఒక్క మాట పలకకుండా నోరు ఎరగకుండా అన్ని విషయాలు చెప్పే సంబంధం అంటే అటువంటి సంబంధం, అలాగే సంబంధం పెట్టుకోవాల్సింది। तो इसीलिए जब हनुमान जी ने देखा ये वहां छलांग लगा रहे तो समझ गए, सुग्रीव छलांग लगा रहे, यानी उनके मन में फिर से वाली का भय उत्पन्न हो गया, स्फुरित।
और फिर हनुमान जी का फर्स्ट डायलॉग इन रामायण, इन किष्किंधा कांड, ही सेज गिव अप द पैरानोया ऑफ वाली। वाली के प्रति आपके हृदय में जो भय है उसका आप परित्याग करिए। मेरे हृदय में लोग ना भयानी प्रेमयानी तीशी बैठेंगे तोलिए भय पर अखर ले। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ही सेज बिकॉज यू आर अ फिकल माइंडेड मंकी, क्योंकि आप एक बंदर हो, वानर हो, और बंदर का स्वभाव क्या है? चंचल। कोवत अंटेने कोति साष्टल। बंदर जो है कभी हमेशा स्थिर नहीं होता, वो छलांग लगाते रहता है। आप यदि वृंदावन जाओगे, स्पेशली आप वृंदावन के केशी घाट से पहले क्षीर घाट जाओगे या मदन मोहन टेम्पल के यहाँ जाओगे, तो बंदर हमेशा क्या करते थे? क्या देखा स्थिर बैठे से वो छलांग लगाते थे यहाँ पर, यहाँ वहाँ से। तब हनुमान जी कह रहे हैं सुग्रीव से, क्योंकि आप एक बंदर हो, चंचल स्वभाव, चंचल होना आपका मूल स्वभाव है। और अब लोग कहेंगे सर प्रॉब्लम क्या है? यू हैव टू बी विथ योर नेचर, दिस इज माय नेचर। पर प्रॉब्लम ये है, हनुमान जी कह रहे हैं यू इजीली कम टू कंक्लूजन्स। आप कोई भी विषय पर बिना सोचे समझे, ఎలాంటి ఆలోచన లేకుండా ఏదో విషయం మీద తొందరనే ఒక निर्णय తీసుకుంటావు। आप तुरंत ही अपने जीवन में एक निर्णय ले लेते हो, ज्यादा सोचते नहीं हो। एक चंचल स्वभाव के व्यक्तियों का लक्षण है, दे इजीली कम टू कंक्लूजन्स। और फिर तीसरा पॉइंट कह रहे हैं मेनी ऑफ दैट कंक्लूजन्स विल बी रिजेक्टेड आफ्टर डेलिबरेट कंसिडरेशन। 3 पॉइंट कह रहे हैं, आपने जो निर्णय लिया है उस निर्णय के ऊपर यदि आप बैठकर कुछ विचार करोगे ना, क्या होगा? आपको पता चलेगा अरे मैंने तो बहुत गलत डिसीजन लिया है। तो हनुमान जी ये क्यों कह रहे हैं? हनुमान जी ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप थोड़ा बैकग्राउंड में जाएंगे तो सुग्रीव और उनका जो टीम था, उनके साथ हनुमान जी, जाम्बवंत, नल, नील, ये जो उनका टीम था, वो सब ऋष्यमुख पर्वत के शिखर पर वास कर रहे थे। किस पर्वत पर? ऋष्यमुख पर्वत। और वहां पर वास करने का प्रयोजन क्या था? वाली से डर कर, अपने जानों को बचाने के लिए सुग्रीव वहां पर है। तो बहुत पहले ये सुग्रीव जी जो है बाद में रामचंद्र को बताएंगे। रामचंद्र पूछते हैं कि भाई आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्या है, पंगा क्या है, आपके और आपके भाई के बीच में झगड़ा क्यों हुआ, दुश्मनी कैसे शुरुआत हुई, पूछते ना दुश्मनी कारण क्या है। तब सुग्रीव बता रहे पूरी हिस्ट्री में, और उसमें एक बात यह कह रहे कि बहुत वर्ष पहले दुंदुबी नाम का राक्षस, एक्चुअली रामचंद्र जी को वाली की शक्ति का अनुमान लग रहा था। तब सुग्रीव बतला है कि बहुत वर्ष पूर्व दुंदुबी नाम का एक राक्षस आया था, जो विशाल काय रूप में, एक भैंस के रूप में आया था, और उसका काया जो थी बहुत बड़ी, विशाल रूप में, विशाल काय से। और फिर बाली ने, एक्चुअली दुंदुबी जो था वो समुद्र पर चला गया, समुद्र से समुद्र को ललकारने लगा, मुझे आपसे युद्ध करना है, प्रकट हो जाओ। तब समुद्र ने कहा भाई मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मैं बहुत क्या हूँ, बलहीन हूँ, इसीलिए मुझे माफ करो। इसीलिए लाइफ में भक्ति करना है तो पंगा मत लो, भले आप कितने शक्तिशाली होंगे, आप सामने को टक्कर दे पाओगे, ठीक है, बट स्टिल सोच ले व्हाट इज द प्रायोरिटी। उनके साथ झगड़ा करके अपना दिमाग खराब करना है या उसी दिमाग को भगवान की सेवा में लगाना है। अंडरस्टैंड? सो ईगो को बाहर रखिए, ये मत सोचिए कि अरे मैं उसके सामने तो झुक गया, मैं उसके सामने तो हार गया। ये बिना सोचे अपना समय को सही मायने में इस्तेमाल करिए। और फिर दुंदुबी ने पूछा तो मेरे बरोबरी का कौन टक्कर? तो बोले हिमालय पर्वत चले जाओ, हिमवान है, उनसे युद्ध करो। तो दुंदुबी
हिमालय चला गया। जब हिमालय गया वहां पर उसने हिमालय के शिखरों को तोड़फोड़ ध्वस्त करने लगा। और तब हिमवान प्रकट हुए, अरे भैया क्या चाहिए तुम्हें, क्यों इतना उत्पात मचा रहे हो? बोले मुझसे युद्ध करो, मुझसे युद्ध करो। तब हिमवान कहते हैं भैया दुंदुभी, ये मेरा जो पर्वत है ना, ये साधु संतों के लिए, योगियों के लिए उचित स्थान है जहां पर वो बैठकर ध्यान करते हैं, इसलिए तुमसे युद्ध कर कर मैं इस वातावरण को दूषित नहीं कर सकता। चलिए, तो इसमें बहुत बड़ा लेसन है। हिमवान चाहे तो वो भी युद्ध कर सकते थे, पर हिमवान क्या कहते हैं, मेरे पर्वतों पर, मेरे शिखरों पर कौन तपस्या करते हैं? साधु संत ऋषि गण मुनिगण, है ना। और साधु संत ऋषि मुनिगण का स्वभाव क्या होता है? शांति। तो हिमालय पर्वत हिमवान जो थे, साधुओं के साथ संग करते करते, साधुओं की सेवा करते करते क्या हुआ? वो भी शांत हो गए। इसलिए चाहे हम जैसे भी हो, जो बनना है उनका संग करो, हमें जो बनना है उनका संग करो। जैसा करोगा, जैसे आप करोगे संग, वैसे आपका चढ़ेगा रंग। तो हिमालय भी शांत हो गए और बोले फिर, अरे मुझे तो लड़ना है। तो बोले जाओ किष्किंधा जाओ, दक्षिण की ओर जाओ, वहां पर कौन है? वहां पर वाली है। तो फ्रॉम वेस्ट ही वेंट टू नॉर्थ एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ परिक्रमा कर रहे थे। और फिर जब वाली को ललकारा तो दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। और लास्ट में at the end, what did Bali do? He caught hold of his feet and he just whirled around and banged him on the ground. और जैसे ही वाली ने धुंधुबी को जमीन पर पटक दिया, उसके मुख से, उसके कान से, उसकी आंखों से पूरा खून बहने लगा। और केवल बहा नहीं, पूरे उस एरिया में क्या हुआ? It got spilled around. और वो एरिया किसका था? वो मातंग ऋषि का आश्रम था। मातंग ऋषि का आश्रम 4 माइल्स के एरिया में था और मातंग ऋषि का आश्रम पूरा दूषित हो गया। और जैसे ही मातंग ऋषि को पता चला कि मेरा आश्रम दूषित हो चुका है, उन्होंने विचार सोचने, कौन है किसने किया, who has done this? Who's the culprit? और तब उन्हें पता चला the culprit is Vali. And then he cursed Vali, 2 curses. He threw 2 curses. उन्हें 2 श्राप दिए। सबसे पहले वाली से कहा, वाली आज के बाद यदि तुमने फिर से इस क्षेत्र में, मेरे आश्रम के क्षेत्र में यदि तुमने अपने पैर रखे, क्या होगा? तो मर जाओगे। ये श्राप। और दूसरा श्राप, यदि तुम न आते हुए यदि तुमने किसी अपने सैनिक को भेज दिया, अपने किसी आदमी को भेज दिया मेरे आश्रम में, तो वो यहां पर पत्थर की मूर्त बन जाएगा। कहकर मातंग ऋषि में चले। तो ये बैकग्राउंड है मातंग ऋषि के आश्रम का। और ऋषमुख पर्वत जो है मातंग ऋषि के आश्रम में ही था। तो अब आप सोचिए, सुग्रीव को भयभीत होने का कारण था क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वाली के जो सैनिक है, कोई भी हो, नहीं आ सकते, है ना। पर फिर भी मन में जब भय बैठता है ना किसी के प्रति, तब भय क्या करता है? हमारे ज्ञान को कवर कर देता है। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए? हमारे उस अंधकार को, हमारे उस अज्ञानता को उजागर करने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए हमें हनुमान जैसे गुरु की आवश्यकता है। तो यदि किसी को प्रश्न हो कि हमें आध्यात्मिक गुरु की जरूरत क्या है, वाई डू वी नीड अ स्पिरिचुअल मास्टर, तो प्रभुपाद जी इस प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय में 7वें श्लोक के परपोट में, तात्पर्य में बड़े सुंदर रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। जब अर्जुन ने यह कहा, कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेतना,
यह श्रेयसा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम। तो प्रश्न उठेगा, अर्जुन ने भगवान को क्यों शरणागत हुए, भगवान की शरण क्यों ली? तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से आप पढ़िएगा उसे, बहुत सुंदर रूप से हमें यह समझाते हैं कि हमें एक गुरु की जरूरत क्यों है। क्यों? क्योंकि भौतिक संसार को भगवान ने इस प्रकार डिजाइन किया है, इस प्रकार बनाया गया है कि हर एक जीव को अपने जीवन में हर क्षण कोई ना कोई कंफ्यूजन बना रहता है, कोई ना कोई टेंशन बना ही रहता है आप में से कोई लोग जो ये कहेगी हमारे जीवन में अब तक कोई टेंशन नहीं, మా జీవితంలో ఎలాంటి టెన్షన్లు బాధలు ఇబ్బందులు ఇంతగా ఎన్నడూ ఎదురుగాలేదు? ఉన్నారు ఎవరన్నా? అయిపోయి ఉన్నారు కాదు, సమస్య లేని వాళ్ళు ఉన్నారు ఎవరన్నా మీ పైకి? అందరి పరిస్థితి అదే. సమస్యలు లేని వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఇక్కడ. కేవలం సమస్యలు లేని కాదు, సమస్యలు మనం మునిగిపోయి ఉన్నాము మొత్తానికి. हम समस्या में पूरे डूब चुके हैं और अपने शक्ति से, अपने बुद्धि से, अपने बल से जब कोई व्यक्ति इन समस्याओं से बाहर नहीं निकल सकता, इन समस्याओं को सॉल्व नहीं कर सकता, तब प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, व्यक्ति जरूरत है जो गुरु है। जैसे कोई व्यक्ति दलदल में फंस गया हो, कोई व्यक्ति दलदल में फंसा हो और वो व्यक्ति चाहे उस दलदल से कितना भी प्रयास क्यों ना करे बाहर निकलने का, जैसे वो एक पैर उठाता है पूरे बॉडी का वेट दूसरे पैर पर चला जाता है, और क्या होता है? वो अंदर धंस जाता है। तो ये पैर उठाता है तो ये पैर धंस जाता है। इस प्रकार से पूरा जीवन सिर्फ पैर उठाने में और धंसने में चला जाता है। और वैसा व्यक्ति यदि किसी और व्यक्ति उसके बगल में और एक व्यक्ति है जो भी उसके सामान दलदल में फंसा हुआ है, यदि वो व्यक्ति उस व्यक्ति का आश्रय ले, क्या वो बाहर निकल पाएंगे? इम्पॉसिबल। उनकी हालत क्या होगी? हम तो डूब रहे सनम, तुम्हें भी साथ में डूबेंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है। हमें उस दलदल से बाहर निकलना है, ऐसा दलदल जिससे हम चाहे कुछ भी करें, हम जो भी हो, हमारे पास जो कुछ भी हो, no matter what you are, no matter what you have, no matter what you possess, how powerful you may be, how rich you may be, how intelligent you may be, how beautiful, how smart, how much control you have over things and people, no matter what you are, with all what you are, with all what you have, when you are unable to come out of that perplexities, Prabhupada ये word use कर रहे हो, perplexities, then it behooves one to accept the spiritual master. तब ये अनिवार्य हो जाता है उसे एक ऐसे व्यक्ति का आश्रय ग्रहण करना चाहिए जो उस दलदल के परे है, जो उस दलदल के बाहर बैठा हुआ है कि नहीं? उस व्यक्ति के मार्गदर्शन से, उस व्यक्ति के मदद से, जब वो व्यक्ति ऊपर से एक रस्सी फेंकता है या कपड़ा फेंकता है, कुछ तो फेंकता है या कुछ है तो अपना हाथ दे देता है और उस हाथ को पकड़कर ही हम बाहर आ सकते हैं और कोई चारा नहीं। यदि किसी के मन में कुछ प्रश्न हो कि मुझे गुरु क्यों चाहिए, तो ये उसका आंसर है। सुग्रीव वानरों के राजा थे, बड़े शक्तिशाली थे, बलवान थे, पर इस दुनिया में आज के समय पर सबसे बलवान शक्ति कौन है? हु इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन, हु इज वेरी स्ट्रांग? वो नहीं जो जिम जाकर 300 किलो 500 किलो उठा ले, जिसका अच्छा फिगर हो, वी शेप में बॉडी हो और कट्स हो 6 पैक का। ये सब फालतू चीज है। आज के तारीख में सबसे बलवान व्यक्ति वो है जिसका अपना मन अपने में नियंत्रित हो। जो व्यक्ति अपने मन को वश में रखता हो वो सबसे बलवान व्यक्ति है, वो सबसे बलवान व्यक्ति है। तो इसीलिए शरीर को तो बल करना ही है, शक्तिशाली बनाना ही है, और उसके साथ साथ क्या करिए? मन को बलवान बनाइए। आज के तारीख में लोग सिर्फ अपने शरीर पर केंद्रित कर रहे हैं, पूरा ध्यान केवल शरीर के ऊपर है, हाउ टू मेक द बॉडी स्ट्रांग। यस, इट्स नाइस, इट्स गुड,
It should be done. But along with that, शरीरंతో పాటు మనసును కూడా గట్టిగా తీసుకోవాలి. शरीर के साथ साथ मन को भी बलवान बनाएंगे और वो आपको प्राप्त होगा केवल गुरु के आश्रय से, भगवान के गुरु के मार्गदर्शन से, भगवान की सेवा के द्वारा। वो गुरु जो भगवान ने जो हमें संदेश दिया है, उस संदेश को हमें बतला कर क्या करते हैं, हमारे मन को बलवान बनाते हैं। तो इसलिए मन को स्ट्रांग करना है। स्किल्स के साथ साथ, स्किल पावर के साथ साथ विल पावर भी बहुत जरूरी है। अर्जुन के पास सब कुछ था, अर्जुन बड़े शक्तिशाली है, लेकिन उनका नाम ही महाबाहु है। अर्जुन को अपने मन में पूरा नियंत्रण में था, इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण था, मन पर भी नियंत्रण था, है कि नहीं। जो व्यक्ति ने अपनी निद्रा पर विजय प्राप्त किया हो, जिनका नाम गुलाकेश हो, क्या चाहिए उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने स्वर्लोक में जाकर अप्सराओं को भी अपना माता के रूप में संबोधित किया, कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। क्योंकि अप्सराएं इस लोक की स्त्री नहीं है, वो इतनी सुंदर होती हैं कि वो जिस बेदिंग टब में स्नान करे ना, हम भी स्नान करते हैं टब में, ठीक नहीं, पानी भरकर, पर उसमें हमें कुछ सोप डालना पड़ता है, सेंट डालना पड़ता है, जैसे मूवी घर गुलाब की पंखुड़ियां डालनी पड़ती है, किस लिए, सुगंधित करने के लिए। और जितना भी सुगंधित क्यों ना हो, स्नान के पश्चात क्या होता है, उसे हमें गटर में फेंकना पड़ता है। पर जब अप्सराएं स्नान करती हैं, जिस टब में वो उतरती हैं, वो पूरा टब ही सेंट बन जाते हैं। ये उनका शरीर है, उन्हें ऐसा शरीर, ऐसा सौंदर्य प्राप्त है कि जल से स्पर्श होते ही उनके शरीर का जो सुगंध है उसे जल में समा जाता है। दैट इज द ब्यूटी। तो ऐसे स्त्री को नकारना, तो ऐसे स्त्री के प्रपोजल को नो कहना, मम्मी कहना, अम्मा वद्दुले, इम्पॉसिबल। वो वही व्यक्ति कर सकता है जिनका अपने मन पर और इंद्रियों पर पूर्ण रूप से। तो अर्जुन के पास सब कुछ था। अब भगवद गीता में जितने अर्जुन के नाम पढ़ेंगे, उन सभी नामों से हमें अर्जुन के गुणों का ज्ञान मिलता है। अर्जुन को महाबाहु कहा गया कि बड़ी शक्तिशाली है, अर्जुन को पार्थ कहा गया क्योंकि वो कुंती के पुत्र है, अर्जुन को पांडव कहा गया जी क्योंकि पांडु महाराज के पुत्र हैं, है कि नहीं। अर्जुन को धनुर्धर कहा गया है क्योंकि बड़े एक्सपर्ट है, अर्जुन को धनंजय कहा गया क्योंकि उनके पास बहुत धन है, अर्जुन को साव्यसाची कहा गया है क्योंकि दोनों हाथ से तीर चला सकते थे। तो हर विषय में निपुण थे, पर अपनी निपुणता से, अपने एक्सपर्टीज से, विथ ऑल हिज एक्सपर्टीज, वो अपने मन को उस समस्याओं से, किस समस्या से, कार्पण्य दोष, कार्पण्य दोष से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाए। उन्होंने बहुत कुछ तर्क किया भगवत गीता के पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय की शुरुआत में, वो कितना तर्क वितर्क कर रहे हैं, है कि नहीं। पर समझ गए, भले मैं कितना भी तर्क वितर्क क्यों ना करूं, पर इन तर्क वितर्कों से मेरी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा। तो उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का आश्रय, उनको शरणागत हो गया। तो इसीलिए गुरु इज नॉट एन ऑप्शनल, गुरु इज मस्ट। यदि आपको समस्याओं से बाहर निकलना है तो, नहीं हम खुश है इसी में, ठीक है आपका चॉइस। जिस प्रकार से आध्यात्म तो बहुत दूर की बात है, भौतिक जीवन में भी बिना गुरु के तो हम कुछ ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर सकते, है कि नहीं। भले स्कूल में जाए या सबसे पहले गुरु कौन है, हमारी माँ है। सबसे पहले हमें बोलना किसने सिखाया, पप्पा ने नहीं, मम्मी ने। और पहले अब मुझे पता नहीं, अब मम्मी सिखाते हैं या घर में काम वाली भाई सिखाते, मुझे पता नहीं। वास्तव में सबसे पहले गुरु मम्मी को कहा गया है कि नहीं, मम्मी सिखाती। पर अब तो मम्मी को टाइम नहीं है, ऑफिस में, जॉब में, तो घर में कौन जो नौकरानी है वही सब कुछ सिखा देती है, वही खिलाती है। पर जो भी हो, चाहे नौकरानी हो या मम्मी हो,
गुरु की आवश्यकता है कि नहीं? किसी ना किसी रूप में गुरु की आवश्यकता है। घर से लेकर जीवन के अंत तक हर कुछ सीखते रहते हैं हम, और कौन सिखाता है हमें? कोई ना कोई व्यक्ति, जिसे हम गुरु कहते हैं। इसीलिए आध्यात्म, जब भौतिक जीवन में बिना गुरु के हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो आध्यात्मिक जीवन में भी ये ऑप्शन नहीं है कि बिना गुरु के मैं आगे चला जाऊं। या बहुत लोग कहते हैं कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वही करो। तो वो बतलाने वाला वो कौन है? जो व्यक्ति ये कहता है कि आपको कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, वो क्या कर रहा है? वो भी गुरु बनने का प्रयास कर रहा है। He is also trying to teach you. तो इसलिए हमें हनुमान जैसे गुरु की आवश्यकता है, जो हमें वास्तविक ज्ञान दे पाए, हमें उस भ्रम से बाहर निकाले, उस अंधकार से, उस अज्ञान से बाहर निकाले, और वास्तविक ज्ञान बतलाकर हमारे हृदय में जो भय, जो मोह और जो शोक है, उसे निकाल बाहर देंगे। तो जब ये सब चर्चा होने के बाद सुग्रीव ने जो है हनुमान जी को भेजा, बोले जाओ पता लगाओ कौन है। तब हनुमान जी ने क्या किया? अपने ओरिजिनल रूप में नहीं आए, वो अपने रूप को बदल कर, छुपा कर आए, बदल कर आ गए, एक ब्राह्मण के रूप में आ गए, पंडित के रूप में, है ना। तब हनुमान जी चर्चा कर रहे, और फिर जब हनुमान जी को पता चला, अरे ये तो साक्षात रामचंद्र है, मेरे आराध्य हैं, जिनकी जीवन भर मैं पूजा करता रहा, जिनके दर्शन का मैं लालायित रहा, आज वो व्यक्ति मेरे सामने आया और मैं उन्हें कैसे पहचान नहीं पाया? हाउ कुड आई नॉट रिकॉग्नाइज हिम? कैसे उन्हें पहचान? बड़े शोक करने लगे, जैसे माधवेंद्र पुरी शोक कर रहे थे। देखा मैं कहाँ जगह पे आया, घूम फिर के वो घुमा रहा हूँ मैं, गीता से लेके भागवत से लेके सीसी से लेके सभी पे घुमाऊं। तो माधवेंद्र पुरी शोक कर रहे थे, हनुमान भी शोक कर रहे थे, कैसे नहीं पहचान? कोई बता सकते हैं आप में? हनुमान जी रामचंद्र जी को क्यों पहचान नहीं पाए? ये आपको वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलेगा, ये आपको तुलसीदास रामायण में मिलेगा। जो हनुमान जी, जिन रामचंद्र के भक्त हैं, पूरे जन्म से लेकर उनकी आराधना कर रहे हैं, उनको पहचान क्यों नहीं पाए? क्या है इसका आंसर? ये बतला पाएंगे? तो पूछते हैं भगवान से, भगवान मैं आपको कैसे पहचान नहीं पाया? हाउ कुड आई नॉट रिकॉग्नाइज यू? हाउ डिड आई फेल इन रिकॉग्नाइजिंग यू? सॉरी, इसका आंसर भगवद गीता का एक श्लोक है। मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं उसका आंसर है भगवद गीता का एक श्लोक। श्लोक बताइए, मुझे नंबर बताएंगे। इसका सिंपल आंसर है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। तो रामचंद्र जी कहा कि यदि तुम हनुमान जी, यदि आप अपने निज स्वरूप में मेरे सामने आए होते ना, तो मैं भी मेरा निज स्वरूप प्रकट करता। तुमने अपने रूप को छुपाकर मेरे सामने आए, तो मैंने भी अपने आप को तुम्हारे सामने प्रकट होने नहीं दिया। तब हनुमान जी का शोक जो है खत्म। तो हम भगवान के पास जिस भाव से आएंगे ना, भगवान उसी तरह हमारे साथ रेसिप्रोकेट करेंगे। तो मैं क्यों उस तरफ गया? क्योंकि माधवेंद्र पुरी क्या कर रहे हैं? शोक कर रहे हैं। हाय मैं भगवान को पहचान नहीं पाया, हाय मैं भगवान को पहचान नहीं पाया, शोक कर रहे हैं। तो बहुत बार हम भी जीवन में बहुत बार शोक करते रहते हैं। भक्ति में हमारा मार्ग ही कौन सा मार्ग है? ये शोक करने का मार्ग है। जैसे गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं कि हमारा जो मार्ग है, कौन सा मार्ग है? रोने का मार्ग है। लोग डर जाएंगे सुनकर, बोले हमारे संस्था से जुड़िए, क्या करेंगे? रोना है वहाँ पर। क्या प्राप्त होगा? जिंदगी भर आप रोते ही रहोगे। डर जाएंगे, कोई नहीं आएगा। ऐसे प्रचार मत करिए कभी, ऐसे प्रचार मत करिए। प्रभुपाद जी ने क्या कहा? चाहे डरे कृष्णा। पर हम ये सब सुनकर ही आए, पर बाद में हम समझ गए कहाँ है हैप्पीनेस।
कौन था जी, किसने बताया मुझे? किसके मुख से सुना मैंने? चांट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। हरे कृष्ण करने से पहले ज़्यादा खुश था मैं, आने के बाद मैं तो रो ही रहा हूँ। यदि आपको लगे कि हरे कृष्णा में आने के बाद मेरे जीवन में केवल रोना ही रोना है, समझ लीजिए यू आर मेकिंग प्रोग्रेस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, यू आर इन परंपरा। क्यों? क्योंकि हमारा परंपरा ही कौन सा परंपरा है? रोने का परंपरा। चैतन्य महाप्रभु रो रहे, चैतन्य महाप्रभु इज क्राइंग, यशोदा माता नंद महाराज इज क्राइंग, gopis are crying, everybody is crying. This is a crying movement. जैसे राजस्थान में होते हैं ना रुदाली, आप जानते हैं रुदालियों को, जो पैसा देकर उनको बुलाते रोने के लिए, हाय 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 रुदाली, वो रुदाली कहते हैं। तो वैसे हम भी रुदाली हैं, पर किसके लिए रोते हैं? षड गोस्वामी रो रहे थे ना, हे राधे हे ब्रज देवी के हे नंद सुनो पुतो, हे राधा हे नंद महाराज के पुत्र, हे नंद किशोर, आप कहाँ पर है? आप गोवर्धन पर हो, यमुना के तट पर हो, कहाँ पर हो? तो रोने को सीखना चाहिए, ये रोने का मार्ग है। पर जब माधवेंद्रपुरी रो रहे हैं, इसलिए ये सुनकर नहीं, अरे बाप रे काम पे लगा दिया, दूध तो पिलाया पर मुझे एक असाइनमेंट दे दिया, इसलिए नहीं रो रहे। वो इसलिए रो रहे कि मैं भगवान को पहचान नहीं पाया। पर हमारे जीवन में भी भक्ति में आने के बाद भी बहुत कुछ ऐसे परिस्थितियां सामने आएंगी, विल बी फेस्ड विद सो मेनी प्रॉब्लम्स, सो मेनी दिस एंड सो मेनी दैट विल बिकम सो मोरोस, इतने निराश होंगे। पर द लेसन टू लर्न इज, यस सही में वैसी परिस्थितियां आ गई हैं, है कि नहीं? चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, जहां पर आपको रोना पड़े, आप बड़े निराश हो, बट डोंट वरी। माधवेंद्रपुरी ने कुछ समय तक शो किया और फिर वो सोचना कि मैं रो क्यों रहा हूं, वाई मैं क्राइंग, कि रोकर मैं क्या कर रहा हूं? भगवान ने मुझे जो सेवा दी है, जो सुवर्ण अवसर दिया है, उनकी सेवा को पूरा करने का, उनको प्रकट करने का, उस सेवा से मैं दूर हो रहा हूं। तो इसीलिए अपने शोक को बगल में रखिए। हमारे लिए बहुत सेवा है, और सबसे बड़ा सेवा क्या है? भगवान के नामों का जप करना, भागवत श्रवण करना, भागवत पढ़ना, भक्तों के संग में सेवा करना, भगवान के लिए कुकिंग करना, सब कितनी सारी सेवा है। तो सेवा करते रहिए, शोक अपने आप उड़ जाएगा। बहुत लोग पूछते हैं हम अपने शोकों से कैसे बाहर निकले? सेवा करिए, सेवा में मन लगा लीजिए। शोक बोलेंगे अरे तो बहुत बिजी है, चले जाएंगे, हम आएंगे आपके दरवाजा खटखटाएंगे, देखेंगे ये बहुत बिजी है, किसमें? सेवा में। जैसे कोई मेहमान आए आपके घर, और ऐसे मेहमान जिनको आप चाहते नहीं हो, आप पसंद नहीं करते हो, तब क्या करोगे? उनको भगाना है तो प्लेट पटको, किचन में जाकर ये डब्बा वो डब्बा सब पटक दो, कुछ गड़बड़ करो, अपने आप भाग जाएंगे। मतलब इतना बिजी हो जाओ, उनको आप देखो तक नहीं, वो आए कि नहीं वो भी आप जानने का प्रयास मत करिए, उनकी ओर देखिए नहीं, जस्ट इग्नोर देम। What will happen? After some time they feel we are ignored, we are not considered, and we are not recognized. So what they will do? They are forced to leave. हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम सारे शोकों को, प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को बोलते वेलकम वेलकम वेलकम, आइए बैठिए, हाँ क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, थोड़ा आराम करिए, हॉल में क्यों, बेडरूम में चले जाइए। लेकिन हम इतने प्रेम से उनका स्वागत करते हैं कि शोक कहते हैं अरे इतना प्रेम से मुझे स्वागत कर रहा है, आप मैं क्यों बात करूं? सो डोंट एंटरटेन देम। एंड हाउ नॉट टू एंटरटेन देम? बाय मेकिंग योरसेल्फ बिजी इन कृष्ण। तब माधवेंद्रपुरी ये विचार किया, अरे मैं क्यों रो रहा हूं? मेरे लिए भगवान ने सेवा दी है, सेवा इंपॉर्टेंट है, सो लेट मी गो एंड सर्व कृष्ण। तो सेवा ही एक ऐसा माध्यम है, ऐसा रास्ता है
जहां पर हम सभी केवल शोक से नहीं, केवल शोक मात्र से नहीं, मोह से, भय से, हमारे हृदय के सारे अनर्थों से जो हमारे जीवन में शोक का कारण है, हम सभी से मुक्त हो सकते हैं। द ऑल प्रॉब्लम इज वी आर नॉट एंगेज्ड इन सर्विस। जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में, व्हाट इज दैट? डेविल्स वर्कशॉप। आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। हमारा मन जब खाली होता है ना, तो सारे भूत प्रेत क्या करते हैं? हावी हो जाते हैं। देखा मैंने ब्रह्मचर्य आश्रम में भी, जो ब्रह्मचर्य फुल सेवा में लीन है, मग्न है, माया से छू नहीं सकती। क्यों? टाइम नहीं है। दिन भर इतनी सेवा में विरक्त हो जाता है और रात को जब सो जाता है, गिर जाता है 1 सेकंड में, तब माया किधर पकड़ेगी? So you have to be busy in Krishna service. ये एक बात। और फिर कथा तो बहुत बड़ी है। फिर भगवान ने माधवेंद्रपुरी को अपनी सेवा में लगाया और प्रकट हो गए नाथ जी के रूप में। वही नाथ जी जो आज नाथ द्वारा में विराजमान है। सुंदर दर्शन होता है। आप में से कितने लोग गए नाथ द्वारा? वहां पर कोई टाइमिंग नहीं होता, देखो दर्शन टाइमिंग। जैसे ही भगवान तैयार हो जाते हैं खा पी कर, श्रृंगार करके, वहां पर एक ही ध्वनि सुनाई पड़ती है। जानते हैं आप लोग? सुना किसी ने? सुना किसी ने? मंदिर के ऊपर बड़ा भोंगा लगता है स्पीकर, उसमें एक ही आवाज, शंखनाद नहीं, दर्शन खुल गए रे, दर्शन खुल गए रे, shout like anything, and people just run from all corners, and that darshan is only for few minutes, you know, and again the darshan is closed. Such a beautiful darshan. So Leela, all of you know, even Prabhuji must have discussed that, but I'll just discuss 3 points, 3 verses in that. I don't know whether he spoke about that or not. If he has spoken, fine. I'll repeat again. इसमें आपको विशुद्धिकरण होगा, मेरा विशुद्धिकरण होगा। तो सबसे पहले माधवेंद्रपुरी के जीवन में इतना जो कष्ट जो उठा, इट इज नॉट इजी। ऐसे नहीं कि गोपाल जी ने कहा मुझे चंदन लगाओ तो बैठकर सर्च मारे कहाँ मिलता है मलाई चंदन, और ऑर्डर दिए नहीं, है कि नहीं? आजकल क्या है, कुछ भी चाहिए तो बस ऑनलाइन जाओ, सर्च मारो, जो पसंद आया ऑर्डर दे दो और 1-2 दिन में डिलीवर हो जाएगी। खुद गए, इतना परिश्रम, इतना कष्ट, केवल चंदन का भार ही नहीं, 100 किलो चंदन, 100 kg ऑफ चंदन, और उसमें 20 तुला कर्पूर, चल चल के जाना है। और उसमें टेंशन क्या है, आदमी सब कुछ झेल लेता है, पर जो गवर्नमेंट ऑफिसर को जो प्रॉब्लम होता है ना, वो झेलना कठिन होता है कि नहीं? कहते हैं ना कि रूप गोस्वामी लिखते हैं नेट ऑफ डिवोशन में, फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट उसमें, कोई व्यक्ति यदि इसने बहुत पाप किए हो पिछले जन्म में, the person has committed a lot of sins, है कि नहीं? So one of the suffering is what? एक तो है कोर्ट कचेरी, एक तो वो बुद्धिहीन होता है, एक तो सुंदर नहीं होता, और कहते हैं पीस, हाँ, क्रॉनिक डिजीजेस, एंड द फोर्थ वन इज कोर्ट कचेरी, लीगलिटीज, क्योंकि दिमाग खराब होता है गवर्नमेंट के काम से। इधर जाओ उधर जाओ, इससे मिलो उससे मिलो, यहाँ पर पेमेंट करो, नहीं उसके पास जाओ उसके पास जाओ। तो आज के 600 वर्ष पूर्व भी चंदन लाना कोई साधारण बात नहीं था। माधवेंद्रपुरी हर एक स्टेट को क्रॉस कर रहे थे, हर एक स्टेट में बॉर्डर पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, उनके साथ में बात करना, उनको मनाना, ये करना वो करना, थोड़ा इजी थिंग। एक तो वजन, भारी भरकम वजन है, खाने पीने को ठिकाना नहीं है। ऐसे नहीं कि ट्रांजिट प्लेस में आ गए, फोन कर दिया प्रभु जी आप कहाँ पर हो, और घर नजदीक है क्या, या सर्च मार लिए कोई ड्यूटी नजदीक है क्या, उनके घर में 2 दिन रुक गए, खाए पिए, थोड़ा आराम कर लिया और फिर चल दिए। नो, नथिंग है सच, ऐसा कुछ नहीं था, नो फैसिलिटीज, बट स्टिल ही गॉट इट। तो इस पूरे लीला में, सारांश में, कविराज गोस्वामी जी कुछ इंपॉर्टेंट श्लोकस कहते हैं कि भगवान ने माधवेंद्रपुरी को इतना कष्ट क्यों दिया। तो ये प्रश्न हमारे जीवन में भी आता है, अरे मेरे भक्ति में कुछ प्रॉब्लम है क्या,
मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं जप कर रहा हूँ, मैं तप कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक है, मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों? Why such things are happening in my life? Where am I going wrong? क्या भगवान की कृपा मुझ पर नहीं है? मैंने क्या पाप किया ऐसा? इसे विचार आना स्वाभाविक है। एक के बाद एक हो तो झेल पाए। इतनी समस्या आती है कि लगता है कि अरे मैं क्यों भक्ति में आ गया। पर कविराज गोस्वामी कहते हैं भगवान समस्याएं किनको देते हैं? आपको, हमको नहीं। किसे देंगे? उनके जो प्रिय हैं, जिन पर उनका पूरा विश्वास है कि चाहे मैं कुछ भी करूं ये मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। आजकल तो रिलेशनशिप में डर लगता है पति पत्नी को, और पति पत्नी को कुछ कहने के लिए। क्यों? हमेशा डर बना रहता है कहाँ छोड़ के चला जाएगा, कहाँ डाइवोर्स का पेपर आ जाएगा, हमेशा ही इनसिक्योर फीलिंग बना रहता है। तो उनकी कोई परीक्षा नहीं होती है, भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं जिन पर भगवान को पूरा विश्वास है चाहे मैं कुछ भी करूं, ही इज नॉट गोइंग टू गिव अप, वो मुझे छोड़ने वाला नहीं है। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं जैसे चंदन को भले आप कितना भी कॉस्टली चंदन क्यों ना ले, नो मैटर हाउ कॉस्टली चंदन में भी if you smell it, it does not smell that fragrant. There is not that fragrance does not come out actually. तो चंदन का फ्रेग्रेंस, उसके सुगंध को यदि आपको बाहर निकालना है उस चंदन से, तो क्या करना पड़ेगा? उसे आपको रगड़ना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा। इसी प्रकार से भक्तों के हृदय में जो भगवान के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम को जब भगवान को इस भौतिक संसार में हमारे से बद्ध जीवों को जो भगवान की सेवा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको यदि दिखलाना पड़ता है, भक्ति का सुगंध इस पूरे जगत में फैलाना होता है, तो भगवान क्या करते हैं? अपने भक्तों को थोड़ा लेकर प्रेम से क्या करते हैं? रगड़ते हैं। तो इसीलिए सावधान, आगे बढ़ना है तो रगड़ने के लिए तैयार हो जाओ। गेट रेडी टू गेट रगड़ोफाइड। भगवान रगड़ेंगे, तो जब भगवान रगड़ते हैं ना, टेंशन मत लो। भगवान रगड़ कर क्या करना चाहते हैं? आपके अंदर जो दिव्य गुण है, जो सुगंध है, उसको बाहर निकालना चाहते हैं, उसे बाहर निकालना चाहते हैं। जैसे हम दही को भी क्या करते हैं? जब मुझे मंथन करेंगे, बिना मंथन किए, अब सोचिए अंदर, कभी आप देखिए मंथन करते वक्त, क्या आपको तो पता नहीं, आपको तो मिक्सर पता है। जब दही को मिक्सर में डालेंगे ना, तो सोचिए कुछ समय के लिए दही बनने का प्रयास करिए। ट्राई टू बिकम, टेक द पोजीशन ऑफ द कर्ड एंड देन यू अंडरस्टैंड व्हाट दैट कर्ड अंडरगोस। घूमना पड़ता है, घर। Just understand what that, try to become curd for some time and understand what that curd undergoes. But if the curd knows that by undergoing this whole vigorous, tremendous procedure, the best in me, what is that? The butter is going to come out. Then automatically the curd gets the power to tolerate and withstand that churning. क्यों? उसमें से मक्खन निकलने वाला है। तो उसी प्रकार से जब तक चंदन को न घिसे, उसमें से जो है उसकी सुगंध बाहर नहीं आएगी। इसीलिए भगवान क्या करते हैं? अपने प्रिय भक्तों को रगड़ते हैं। तो इसलिए गेट रेडी टू रगड़। That is simply, understand one thing, that is simply to increase your glory. Increase your glory. That is first lesson. So don't get fearful when somebody is ragdofying, whether Krishna, your authorities, or even your husband and wife. बहुत लोग पूछते हैं मेरे पति ऐसे करते हैं, मेरी पत्नी ऐसी करती है। घबराओ मत,
वो तो केवल इंस्ट्रूमेंट है। भगवान एक्चुअली आपको उनके माध्यम से क्या कर रहे हैं, अल्लाह कर रहे हैं। हमको क्या करना है, जस्ट काम स्थिति शस्व। और भगवान क्या दिखलाना चाहते हैं, प्रगाढ़ प्रेमेर एई स्वभाव आचार। दूसरा कहते हैं प्रगाढ़ प्रेमेर एई स्वभाव आचार, निज दुख विघ्न आदि न करे विचार। प्यार भी अलग अलग लेवल का होता है, प्यार भी अलग अलग लेवल का होता है। जैसे दूध, एक सादा दूध होता है, जब दूध को आप ऐठेंगे तो वो गाढ़ा बन जाता है, और ऐठेंगे तो वो रबड़ी बन जाता है, और ऐठेंगे तो वो बर्फी बन जाता है, और ऐठेंगे वो जल जाता है। इसलिए बर्फी से आधे ऐठने का प्रयास मत करिए। जब बर्फी बन जाता है बी सैटिस्फाइड। लालच बुरी बला है, और उसे जलाने का प्रयास करेंगे तो बर्फी से कोयला बन जाएगा। तो इसीलिए वही दूध है, पर अब क्या हुआ है, घट हो गया है। तो इसलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं प्रगाढ़ प्रेम। हम भी भगवान से प्यार करते हैं, हम भी भगवान से प्रेम करते हैं ना, पर हमारा प्रेम कैसा है, पैकेट का दूध जैसा है। या उस भैया की तरह जिसने बॉम्बे भैया लोग दूध बेचते ना, है ना, यूपी वाले भैया भैया के थे, तो भैया जो दूध बेचते हैं ना, तो क्या करेंगे, 1.5 लीटर दूध में 3-4 लीटर पानी डालेंगे। तो सोचिए दूध कैसा होता है। तो वैसा प्रेम हमारा है, पतला, नाम के लिए सफेद सब दिख रहा है दूध, केवल नाम के लिए दूध है, कुछ नहीं उसमें, है कि नहीं? तो नाम के लिए भक्त हैं हम, अंदर कुछ सब्सटेंस नहीं है, बस सबका वही हाल है। पर क्या करना है, हमें फायर पर चढ़ना है। दूध को गाढ़ा करना है तो केवल बैठने से गाढ़ा होगा, वो सुखाने से गाढ़ा होगा। उस मटके को, दूध को, अपने आप को क्या करना होगा, आग पर बैठना होगा। सो यू हैव टू सिट इन द फायर ऑफ एवरीथिंग, वट एवर कृष्ण है ना, तब जाकर दूध गाढ़ा होता है। तो इसीलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं प्रगाढ़ प्रेम। प्रगाढ़ जो घट प्रेम है, उसका स्वभाव क्या है, कैसे जानेंगे कि मेरा प्यार, मेरा प्रेम भगवान के प्रति पतला है। जब डेयरी में जाओगे आप, वो इंस्ट्रूमेंट देखा आपने, दूध का स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं, दूध कितना गाढ़ा है कितना पतला है। तो कैसे पता चलेगा कि मेरा दूध, मेरा भक्ति, मेरा प्रेम कितना गाढ़ा है कितना पतला है, कैसे पता चलेगा, हाउ विल यू नो दैट। प्रगाढ़ प्रेमेर एई स्वभाव आचार। प्रगाढ़ प्रेम का स्वभाव, उसका लक्षण क्या है, निज दुख विघ्न आदि न करे विचार। भगवान की सेवा में कोई भी दुख, कितना भी दुख क्यों ना हो, निज दुख विघ्न, कितने भी विघ्न क्यों ना आए, उनके बारे में कोई विचार न करना। और जब आप विचार नहीं करते हैं तो वास्तव में उनका अस्तित्व होता ही नहीं, है कि नहीं? When you think about those, they are existing. When you don't think, they don't exist. जैसे मैंने कहा, हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम समस्याओं को बेडरूम में ले जाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, एसी लगा देते हैं, तो समस्या बाहर निकलेगी क्या? तो इसीलिए निज दुख विघ्न आदि न करे विचार, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। केवल यही सोचना है कि कैसे मैं भगवान की सेवा और कर पाऊं, कैसे मैं और जप कर पाऊं, है ना, कैसे मैं और भक्तों का संग करूं, कैसे मैं भागवत को और श्रवण करूं या पाठ करूं। दिस शुड बी द फोकस, दिस शुड बी द फोकस, देन दो समस्यास एक्चुअली डोंट एग्जिस्ट। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक कविराज गोस्वामी कहते हैं, बहु परिश्रम कोनी चंदन रेमुना आनीला। बड़े परिश्रम से, बड़े कष्ट से माधवेंद्रपुरी ने चंदन को रेमुना से ले आए। बहु परिश्रम कोरी चंदन रेमुना आनीला, है ना, आनंद बढ़ीला मने। ये क्या कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट।
पहले क्या वर्ड यूज किया है? बहु परिश्रम करी चंदन रेमुना अनिला। पर दूसरा लाइन ये कह रहा है, द सेकंड स्टेटमेंट इज आनंद बढ़िला मने while getting that chandan with all those problems, with all those difficulties, Madhvendra Puri was experiencing a bliss. अब आप कहेंगे इतनी समस्याओं में आदमी कैसे आनंदित हो सकता है, कैसे उसका मन प्रसन्नचित हो सकता है? आनंद बढ़िला मने, और केवल आनंद नहीं, आनंद क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आनंद बढ़िला मने, हाउ इट इज पॉसिबल? ये हमको सीखना है। सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला। बहु परिश्रम करी चंदन रेमुना अनिला, आनंद बढ़िला मने, लास्ट लाइन है दुख ना गणिला। उन्होंने क्या किया? दुख की कोई गिनती नहीं की। नॉर्मली जब हमारे जीवन में समस्या आती है, प्रॉब्लम्स होते हैं, तो क्या करते हैं? या जब झगड़ा होता है पति पत्नी के बीच में, हाँ? या जब भगवान से कुछ हमारे अनुकूल नहीं होता, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहला काम, द फर्स्ट थिंग वी डू इज वी कम बिफोर द लॉर्ड, और क्या करते हैं? हिसाब किताब। मैंने इतने साल से मैं जप कर रहा हूँ, आई एम चैंटिंग फ्रॉम सो मेनी ईयर्स, I have given up so many things, I am following regular principles, I have done so much seva, I have given so much donation, this that, अमका तमका पूरा लिस्ट निकालते भगवान सामने। जैसे हिंदी में देखते हैं ना, हीरो जाकर भगवान के मंदिर में, हीरो की माँ या हीरोइन कोई हॉस्पिटल रेडी होती है, तो हीरो अगर घंटा टांग टांग, अरे भगवान तू है कि नहीं, तू किधर गया, तू है तो आजा, इतना मैंने क्या नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, हाँ मैंने इतने एकादशी की, मैंने इतना ये किया, मैंने हिसाब किताब करते हैं। जब कोई संबंध में झगड़ा भी होता है ना, तो दोनों पार्टी सबसे पहले काम क्या करते हैं? तो फर्स्ट थिंग दे डू इज लेक्कल सुपर नीचे लेना, नहीं नज्जे लेना, हाँ है कि नहीं? तो इससे बाहर निकलिए, कम आउट ऑफ दिस कैलकुलेटिव मेंटालिटी। ये मत समझिए कि मैं सब कुछ कर रहा हूं तो भगवान पर कोई मेहरबानी कर रहा हूं। हम कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं जप करके या भागवत पढ़ के या नियम पालन करके। ये केवल हम, लैपटॉप बंद हो गया, हम केवल हमारे शुद्धिकरण के लिए कर रहे हैं बस। हम जो भी कर रहे हैं हमारे शुद्धिकरण के लिए, भगवान को इसकी कोई गरज नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। वैकुंठ में भगवान के अनंत पार्षद है जो भगवान की नित्य रूप में सेवा कर रहे हैं, तो भगवान को हमारी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो केवल हमें भगवान की सेवा। हमसे सेवा लेकर भगवान शुद्ध नहीं होने वाले, पर हम सेवा कर हम शुद्ध होंगे। तो इसीलिए ये हिसाब किताब करना छोड़िए, कम आउट ऑफ दिस कैलकुलेटिव मेंटालिटी। और जब तक इसमें बंधे रहेंगे ना, यू विल नेवर बी हैप्पी, कभी खुश नहीं पाएंगे और आनंद बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए बहु परिश्रम करी चंदन रेमुना अनिला, आनंद बढ़िला मने दुख ना गणिला, है ना? तो एक तरीका समझना है कि दुखों का हिसाब नहीं करेंगे तो आनंद बढ़ेगा, एक इस तरह समझना है। और दूसरी क्या है? इतनी सेवा करो कि भगवान उस सेवा के प्रतिरूप में आपको आनंद प्रदान करे, है कि नहीं? और जब आनंद का आस्वादन होगा तब चाहे कितनी समस्याएं क्यों ना हो, वो आप गिनती में नहीं आएंगे। तो आइदर वे, आइदर बिकम हैप्पी एंड यू विल गिव अप काउंटिंग, और गिव अप काउंटिंग टू बिकम हैप्पी। चाहे ऐसे समझो या वैसे समझो, पर समझना क्या है? हिसाब करना छोड़ो। अपने से छोड़ोगे या भगवान छोड़ाएंगे। तो इसीलिए हमारा फोकस केवल सेवा पर होना चाहिए। इस भावना से, इस भाव से कि मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ, जो भी समस्याएं, जो भी विपदाएं आ रही है, वो केवल भगवान मुझे क्या कर रहे हैं? रगड़ रहे हैं। विपदा शांत शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनो यस्यात् पुनर्भव दर्शना। भगवान मुझे फिर से इस भौतिक संसार का दर्शन
करवाना नहीं चाहते, इसलिए मुझे रगड़ रहे ताकि मेरे सारे कलमश बाहर निकल जाए। मुझ में जो मेरा प्रेम है भगवान के प्रति, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम असाध्य कबुनाय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय, वो प्रेम प्रकट हो और वो प्रेम प्रकट होकर हम भगवान को अर्पण करें। तो इसीलिए ये चंदन यात्रा के माधवीनपुरी के कुछ लीला में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो मैं सोचा कंटिन्यू करूँ आगे। वो सुनकर मेरी इच्छा हुई, तो मैं तो फुल प्रिपेयर करके आया था। इन्होंने जो टॉपिक दिया था भगवद गीता 2nd चैप्टर के 7th and 8th वर्स, बट स्टिल आई टच्ड इट। और इसी माधवेंद्रपुरी के इसे उन्होंने एक पॉइंट लिखा कि हाउ टू डील विद गुरु, गुरु की सेवा किस प्रकार करनी है। तो माधवेंद्रपुरी की लीला से हम और एक सीख सकते हैं, डोंट इंस्ट्रक्ट योर गुरु, अपने गुरु से अधिक चालाक बनने का प्रयास मत करो। डोंट शो योर स्मार्टनेस इन फ्रंट ऑफ योर गुरु। आप कितने बड़े प्रचारक क्यों ना बन जाए, कितने बड़े 30 मार खान क्यों ना बन जाए, और आपका गुरु एक साधारण व्यक्ति होगा जिनको सोशल मीडिया में कोई जानता भी नहीं होगा, है कि नहीं, और आपके करोड़ों करोड़ फॉलोअर्स होंगे, बट स्टिल यू आर सबसर्विएंट योर गुरु। डोंट ट्राई टू इंस्ट्रक्ट हिम। तो माधवेंद्रपुरी जब बहुत बूढ़े हो चुके थे, इतने बूढ़े हो गए थे, इतने बूढ़े, इतने कमजोर हो गए चुके थे कि अपने बेड से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, बेड पर ही मलमूत्र विसर्जन कर रहे थे। ही बिकेम सो वीक और रो रहे थे। इसमें कहा ना हमारा इंस्पिरेशन क्या है, ये संप्रदाय कौन सा संप्रदाय है, रोना। और माधवेंद्रपुरी भी रो रहे, क्या कहकर रो रहे, मथुरा ना पाइनू, मथुरा ना पाइनू, मथुरा ना पाइनू, है ना। मैं तो अब तक मथुरा भी नहीं पहुंच पाया, मैं तो अब तक मथुरा भी नहीं पहुंच पाया, अब तो वृंदावन गोकुल कब पहुंचूंगा। इस प्रकार से वो क्रंदन कर रहे। तो उनके एक डिसाइपल थे जिनका नाम था रामचंद्रपुरी, ओवर स्मार्ट डिसाइपल। डिसाइपल से भी अलग अलग लेवल डिसाइपल होते। तब ये माधवेंद्रपुरी से ये रामचंद्रपुरी कह रहे, क्या आप इस प्रकार क्रंदन कर रहे हो, यदि आप मथुरा नहीं पहुंचे, उतने उच्च स्थाई तक नहीं पहुंचे, तो एक काम करिए, आप निराकार स्वरूप पर ध्यान करिए। सोचिए, एडवाइजिंग द गुरु और इंस्ट्रक्टिंग द गुरु। क्या हुआ उसका नतीजा, उनके मन में गुरु के प्रति अपराध करने से क्या हुआ, उनके मन में सारे वैष्णव में खोट ढूंढने की प्रवृत्ति है। इसीलिए अब चैतन्य पढ़ेंगे तो पूरा एक चैप्टर है। जब रामचंद्रपुरी जगन्नाथपुरी पहुंचे तो क्या करते थे, सारे वैष्णव को महान वैष्णव अपने घर पे बुलाते थे भोजन कराने के लिए, और जबरदस्ती खाइए 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 करके सर्विंग करते थे। अब वैष्णव क्या करें बेचारे, जब प्लेट में पड़ जाए तो महाप्रसाद है, फेंक भी नहीं सकते, अपराध होगा, ये सोचकर खा लेते थे। और फिर बोलते थे, देखो पेटू भुक्खड़, इतने खाते हैं लोग, ये लोग साधु है, ये भक्त है, ये वैष्णव है, उनकी निंदा करने थे। तो बहुत बार क्या होता है, हम कहते हैं मैं तो गुरु के प्रति बहुत प्रेम रखता हूँ, मेरे काउंसलर के प्रति बहुत प्रेम है, अपराध करता हूँ मेरे इक्वल से, बट वो शुरुआत है। एवरीथिंग बिगिंस विथ स्मॉल थिंग। तो उन्होंने पहले सबसे पहले वैष्णव की निंदा करनी शुरू की, फिर महान भक्तों की, और फिर साक्षात एक दिन वो गंभीर आ गए महाप्रभु से मिलने के लिए। महाप्रभु उनको अपने गुरु के रूप में पूजा कर रहे थे, उनकी आराधना कर रहे थे, उनका सम्मान कर रहे थे। पर एक दिन जब रामचंद्रपुरी चैतन्य महाप्रभु के गंभीरा में आ गए तो वहां पर कुछ चीटी दिखे उन्हें। अपराध करने के लिए कारण की जरूरत नहीं है, कुछ भी देखकर अपराध कर सकते हैं। यू डोंट नीड एनी रीजंस टू ऑफेंड डिवोटीज। कुछ चीटियां दिखी और तुरंत ही उन्होंने जोर से कहने लगे, देखो ये अपने आप को बहुत बड़े सन्यासी मानते हैं, पर इनका अपने जीवा पर नियंत्रण भी नहीं है। छुप छुप कर, बाहर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, छुप छुप कर ये बहुत मिठाइयां खाते हैं करके चैतन्य महाप्रभु पर उन्होंने लांछन आरोपण किया। क्यों, चीटी को देखकर। उनके आरोप सुनकर महाप्रभु ने खाना बंद कर दिया, आधा कर दिया। सोचिए उसका नतीजा क्या हुआ, माधवेंद्रपुरी ने सभी को अपराध, सभी की निंदा कर दी, सभी के प्रति अपराध किए। सॉरी, रामचंद्रपुरी।
सभी के प्रति अपराध कर रहे, यहाँ तक कि भगवान को भी छोड़ा नहीं। क्या हुआ? पूरी से आउट हो गया। भक्तों के संग से दूर, भगवान के संग से दूर। जिन भक्तों के संग में रहकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करने का अवसर था, क्या हुआ? उनमें खोट ढूंढकर, उनके प्रति अपराध करके, उनकी निंदा करके वो संग से दूर चले गए। सो डोंट इंस्ट्रक्ट योर स्पिरिचुअल मास्टर, डोंट ट्राई टू इंस्ट्रक्ट योर स्पिरिचुअल मास्टर, डोंट थिंक दैट यू आर मोर स्मार्ट देन योर स्पिरिचुअल मास्टर। और वही दूसरी ओर ईश्वरपुरी, वो भी इनके माधवपुरी डिसाइपल थे। जब माधवपुरी इतने कमजोर अवस्था में थे तो खुद अपने हाथों से माधवपुरी को नहलाते, मलमूत्र साफ करते, उनका बेडिंग सब कुछ करते। और जब वो रोते थे, कृष्णा मथुरा ना पाइनू, मथुरा ना पाइनू, तब ईश्वरपुरी उनको कृष्ण कथा भागवत में सुनाई देते थे। और उनसे प्रसन्न होकर माधव इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया। इनको श्राप दिया था। जब रामचंद्र ने ये कहा कि आप निराकार पर ध्यान करिए, तो निकल जा नालायक, यहाँ से दूर हो जा मेरी नजरों से, भगा दिया। और वही ईश्वरपुरी को आशीर्वाद दिया, तुम्हें कृष्ण की प्राप्ति हो। और उसका नतीजा क्या हुआ? साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपना गुरु के रूप में स्वीकार, भगवान के गुरु बन गए वो। कैसे? अपने गुरु की सेवा करके। और गुरु अपराध करके ये वैष्णव के संग से बाहर निकल गए। इसी प्रकार से गुरु का संग प्राप्त करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। पर जानिए, सौभाग्य के साथ साथ दुर्भाग्य भी आ जाता है। दुर्भाग्य भी पीछे पीछे आ जाता है, पर हम पर निर्भर है कि उस दुर्भाग्य को हमें दूर भगाना है, सावधान रहकर, या अपने आप को अहंकार के वशीभूत होकर, घमंड के वशीभूत होकर हमें अपराध करके उस दुर्भाग्य को, सौभाग्य को भगाकर दुर्भाग्य को आलिंगन करना। So we have to be very, very careful. Opportunity is there to become advanced in Krishna consciousness by serving Guru. पर वही गुरु, जैसे कहते हैं ना, आग को यदि आप ठीक से संभाल नहीं पाए तो वही आग आपको जला देगा। आग से आप भोजन बना पाएंगे, आग से आप भोजन को जला भी पाएंगे। We should know, we should have the regulator of humility. We should have the regulator of simplicity. तब जाकर उसी गुरु की सेवा से, उसी गुरु की सन्निधि से आप जो है भगवान के परम धाम को प्राप्त कर पाएंगे। आई वेंट लॉट ऑफ ओवर टाइम, क्षमा करिएगा, बहुत समय तक खिंचता रहा। यदि किसी कोई प्रश्न है और समय अनुकूल है, अगर प्रश्न है तो यू कैन टेक अ क्वेश्चन। आई डोंट नो आई टच योर पॉइंट नॉट, बट समवेयर देयर। यदि किसी को कोई प्रश्न है, anybody has any question, they can ask if we have time, otherwise next program. दो लोग प्रश्न नहीं पूछते, दो प्रकार के लोग। कौन? जिसे सब कुछ समझा और जिसे कुछ नहीं समझा। ये दो के प्रश्न नहीं करते। हमको सब कुछ समझ गया, क्या पूछना है, हमें तो कुछ भी नहीं समझा, क्या पूछे। प्रश्न करने वाले कौन है? बीच वाले। तो अभी आप लोग किस कैटेगरी में, मुझे पता नहीं। आपको सब कुछ समझा या आप मन में सोच रहे हैं यार कितना पका रहा है, बस कर, अभी बहुत हो गया, भूख लग रही है, सुबह से बैठे, नींद भी आ रही है। आई डोंट नो, बट जो भी है, भले आपको नींद आया हो, आप बोर हो गए हो, लेकिन जो भी हुआ हो, पर एक चीज़ फॉर श्योर क्या है, हमारा शुद्धिकरण हो गया। कृष्णा कथा कहकर मैं शुद्ध हो गया, और आत्मा भले शरीर सोया हुआ हो, आत्मा कृष्ण के बारे में सुनकर वो भी जो है पवित्र हो गया। सो दैट इज टेकिंग प्लेस, दैट इज फॉर श्योर। यस माता जी। इसीलिए हमें कुछ भी नहीं है। आमी तो कंगालो कृष्णा कृष्णा करी धाई तव पाछे पाछे, हमें यही काम करना है। हमें कुछ नहीं है, पर हम जानते हैं कि ये बिना कुछ के हम कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए प्राप्त करना ही है। तो कैसे प्राप्त करेंगे? कंगाल की तरह हमें उनसे याचना करनी है। और सिंपल सोल्यूशन क्या है? याचना करने की आवश्यकता, आप सेवा करिए बस।
यशस्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वगुणे तत्र समासते सुरा। आप केवल सेवा करिए, हमारे सेवा संतुष्ट होकर वो खुद ही हमें सब प्रदान करेंगे। जिस प्रकार से कर्दम मुनि ने देवहूति को अपनी तपस्या से अर्जित सारा यश जो है क्या किया, प्रदान कर दिया। देवहूति ने कोई तपस्या नहीं की थी, वो ध्यान नहीं कर रही थी, उसने क्या किया, केवल कर्दम मुनि की सेवा में लीन हो गई बस। और जिस दिन गुरु देखेंगे ना, ये व्यक्ति निष्कपट भाव से, विनम्र भाव से मेरी सेवा में लीन है, वो खुद ही ट्रांसफर कर देंगे अकाउंट में, जीपे कर देंगे, फोन पे, गूगल पे या जो भी पे है सब पे कर देंगे। हरे कृष्ण। यस बोलिए। అర్థమైందా? చెప్పండి. భక్తిలోకి వద్దామని భక్తి చేస్తూ ఉన్నాము, అటువంటి వారికి అధికంగా కష్టాలు వస్తే దాన్ని మనం ఎలా తీసుకోవచ్చు? उनका प्रश्न है कि जो भक्त नए नए भक्ति में आ गए हैं, है ना, अभी भक्ति की शुरुआत की है, तो उनके जीवन में कष्ट आता है, तो उसे किस प्रकार से हमें देखना है? ये सेवा करने की इच्छा से वो आए हैं, पर उनके जीवन में प्रॉब्लम आए, तब क्या करें, कैसे? तो सबसे पहले एक विषय जान लीजिए कि भगवान किसी को तुरंत ही कष्ट नहीं देते, ये भाग जाएगा ना। तो भगवान स्टार्टिंग में क्या करते हैं, ऑफर देते हैं। जब कोई नया मॉल खुलता है तो क्या करते हैं, ऑफर देते हैं ना, बाय 1 एंड गेट 10 फ्री। क्यों? उस व्यक्ति को उस शॉप से जोड़ने के लिए। तो भगवान ऑफर देते हैं। तो स्टार्टिंग में आते नहीं है बहुत समस्याएं, पर ये समस्या आए भी, समस्या आए भी, पर अब क्या करें, वो नए हैं, उनको पूरा ज्ञान भी नहीं है ना। तो क्या करना चाहिए? सिंपल है, इसे भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करना है। पर हम बोले यार ये कृपा है क्या, तो स्वीकार करना बहुत कठिन हो जाता है। ऐसे भगवान नहीं चाहिए हमें, हमें आनंद प्रदान करने वाले भगवान चाहिए, दुख समस्या वाले भगवान नहीं चाहिए, तो स्वीकारना कठिन हो जाता है। तो हमें केवल ये समझना चाहिए मेरा कर्म है बस। भगवान की सेवा में लगने से क्या हुआ, मेरा कर्म जो है मुझसे छूटते जा रहा है। जैसे कहते हैं ना, यदि हमारे जीवन में बहुत बाधाएं आए, हमें फेस्टिवल करना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए। क्यों? When lot of problems come in our life, we should do festivals. We should be very happy. And when lot of happiness come, we should become morose actually. जब बहुत सुख आए तो हमें उदास होना चाहिए। मतलब ये क्या है? कोई सुना है ये कैलकुलेशन? जब कुछ सुख आता है तो हम तो उत्सव करते हैं ना, तो जब कुछ समस्या आती है तो हम शोक करते हैं। पर मैं उल्टा कह रहा हूँ। कैसे? जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा भी घटता है तो ये सोचना चाहिए कि मेरे पुण्य कर्म खत्म हो गए, उसके चलते शोक करना चाहिए। हाय मेरे पुण्य खत्म हो गए, हाय मेरा पुण्य खत्म हो गया, पुण्य का जो कोटा था खत्म हो चुका है, इसलिए शोक करना चाहिए। और जब दुख आते हैं ना, तो ये सोचकर उत्सव करना चाहिए कि हाय मेरे पाप कर्म कट गए, जितने मैंने पाप किए थे वो सारे कर्म जो है कटते हैं, इसलिए हमें उत्सव करना चाहिए। और किसी कोई प्रश्न? प्रश्न ये होगा कि आप कब चुप बैठेंगे? यस। When you are taking initiation from Guru, एक मिनट ही, अधिक समय नहीं लूंगा। So, who will in the instructions follow my instructions, do help my mission. Yes, that is how we take. Yes. So when you are taking instruction, then we accept it and we are away from the Guru after from the Yes. years. Okay. So in such instructions, so there are many instructions which is given different locations. So what instruction exactly we have to follow? Because whether it is applicable for us or not applicable for us, how to understand this? How to So instructions are of many varieties at many levels. तो जब हम दीक्षा लेते हैं ना, when we take initiation, then there is general instruction from the Guru, general instruction which everybody has to follow, and those instructions are designed in such a way that you can follow. Is it good? And what are those? Chanting 16 rounds, following 4 agreed principles, and serving the mission in humble mood of servant of the servant. That we have to follow. But if we are fortunate enough, यदि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं
गुरु के करीब आकर, गुरु के साथ में रहकर वो सौभाग्य यदि प्राप्त हो, तो उस समय गुरु हमें कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन देते हैं हमारे गुणों को, knowing our nature, our quality, our attitude, our inclinations. He gives us some special instructions which you have to follow. Along with that, it is not that because of this instruction you compromise with those first instruction, because they have to be followed. First is basic, chanting 16 rounds, following 4 active principles. It is not that, you know, chanting kal kar lo, aaj seva karo. No. Please understand this principle. Many places I see, I hear, where people are told, where followers are told by the leaders, दिस इज फेस्टिवल, आज जन्माष्टमी है, आज ये फेस्टिवल है, आज वो फेस्टिवल है, सेवा पहले जब कल जब कर लेना, आज सेवा करो। हमने सबसे पहले गुरु को वचन क्या दिया है? क्या वचन दिया है? मैं 16 माला जप करूंगा। ये नहीं वचन दिया कि मैं टेम्पल प्रेसिडेंट बनूंगा, मैं दिन में 10 क्लास लूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये वचन नहीं दिया है। तो सबसे पहला वचन दिया है 16 माला। और यदि हमारे अंदर जो है या हम है, हम 16 माला कर कर सेवा करेंगे तो एक्चुअली वास्तविक रूप में वो सेवा होता है, नहीं तो काम होता है। क्योंकि 16 माला जब करेंगे तभी हमारे मन में भाव आएगा कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, वैष्णव के लिए कर रहे हैं, तो वो सेवा होती है। और सेवा का स्वरूप क्या है? सेवा करने से आपको आनंद मिलेगा। और काम का स्वरूप क्या है? आप निराश होंगे, फ्रस्ट्रेटेड। सो देयरफॉर यदि आपको लगता है कि आज फेस्टिवल है, ये है, बहुत सारी सेवा है, तो सवेरे जल्दी उठिए, 16 माला खत्म करिए, माला को लटका दीजिए और फिर पूरी दिन और पूरी रात सेवा करिए। नहीं तो वही सेवा में आप फ्रस्ट्रेट जाओगे, थोड़ा कुछ हो तो थोड़ी सी गाली मारोगे, इसको गाली मारो, उसको गाली मारो, सबको गाली मारते रहोगे। क्यों? आप फ्रस्ट्रेट हो गए। सो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज टू चैंट 16 राउंड्स। Children, sit down. नो कॉम्प्रोमाइज विद दैट। उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आपको लगता है बहुत सेवा है, अभी हम भी टेंपल में रहते हैं, हमें भी बहुत सेवा होती है फेस्टिवल्स के समय, पर हमारा रूल है, हम सुबह सेवा की शुरुआत होने से पहले ही जप कर कर माला को रख देंगे, फिर माला को हाथ नहीं लगेंगे, फिर पूरे जी जान से। क्योंकि जब से आपको उत्साह आएगी, जब से आपका भाव बनेगा, सेवा करने की उत्साह और सेवा का भाव केवल जब से आए। So therefore no compromise with chanting. This is first level. Then second level, if you are fortunate enough that you have received some special instruction from a spiritual master, then that also is a priority. That also has to be done, but no instruction is more important than chanting 16 rounds. Because Guru will be pleased by chanting 16 rounds. पर सबका ये सौभाग्य नहीं होता कि हमें गुरु के पास, जब अभी का जो सिस्टम है, जो दीक्षा का जो सिस्टम है, जिस दिन दीक्षा हो रही है उसी दिन गुरु के आमने सामने आ गए। और वो इतना फास्ट होता है कि ना गुरु ने आपको देखा ना आपने गुरु को देखा। आप तो गुरु को देख लेते हैं पर गुरु ने आपको देखा भी नहीं। बहुत बार तो गुरु को पता है कि नहीं पता है कि शिष्य के। हमारा टाइम अलग था, जब हमारा दीक्षा हुआ करता था, हम तो गुरु के साथ 15 मिनट सामने बैठा करते थे, गुरु के सब मुकाम आमने सामने हुआ करते थे। गुरु माला देने से पहले बहुत कुछ बातें करते थे, पूछते थे, हमारे नाम को समझाकर बतलाते थे ये नाम का अर्थ क्या है। आज तो सिस्टम नहीं है, पर ठीक है, सिस्टम है, ये अगेंस्ट सिस्टम। पर फिर उस परिस्थिति में हम क्या करें? गुरु के साथ कोई संबंध नहीं, गुरु के साथ कोई पर्सनल इंस्ट्रक्शन नहीं, तब क्या करना? तब जो गुरु को हमने वचन दिया उसे पालन करते हुए हमारे जो इमीडिएट अथॉरिटीज है, चाहे यात्रा लीडर हो या हमारे काउंसलर, जो भी आप यहाँ पर कहते हैं, वो आपको सही इंस्ट्रक्शन दे और उनको आपको पालन करना है। पर जिम्मेदारी भी बनती है गुरु की, काउंसलर की, कि आप ऐसे इंस्ट्रक्शंस दो उनको जानते हो, ये नहीं कि जो मन में आपसे बोल दिए। आप उनको जानो, अंडरस्टैंड देयर पोटेंशियल्स, अंडरस्टैंड इंक्लिनेशंस, whether they can do or not do, and then give them instructions. When they will be happy, you will be happy. It is not that just because we have some position and we give any instruction to anyone. No, the big responsibility. Big responsibility to give instruction and big responsibility to follow the instruction. तो गुरु के ऊपर, शिष्य के ऊपर दोनों जिम्मेदारी है। So it's a very responsible seva to become a leader. Otherwise, what will happen?
विल सिंपली फ्राई डिवोटीज. डिवोटीज केवल पक जाएंगे. So therefore, first 16 rounds, 48 principles, and then whatever our immediate authorities tell us, we should follow that. बस और कुछ नहीं. और कोई प्रश्न? Sorry for boring you all and taking your valuable time, but Krishna has definitely seen your tolerance and patience, and seeing your tolerance and patience, Krishna will definitely, Jagannath and Gauranga will definitely bless all of you, and that is my only prayer. So once again, I thank you all very, very much for the entire Yatra devotees and leaders here for giving an opportunity to speak for the purification of my own heart. Apart from this, I have no expectation from the Lord. Just मेरी आत्मा की शुद्धि के लिए भगवान के बारे में जो कुछ सुना है बड़े लोगों से, उसे ही दोहराने का तुच्छ प्रयास हमने किया है. तो आप सभी के हम आभारी हैं. तेलुगु में कहते हैं पेरू पेरू धन्यवाद. इंडिविजुअली आप सभी के हम आभारी हैं. पेरू पेरू यानी क्या? हर एक के नाम लेते हुए आपके हम आभार प्रकट करते हैं. पेरू पेरू ना धन्यवाद. हरे कृष्ण प्रभुपाद की जय. श्रीमद् भागवतम की जय. प्रेमानंदे.